بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور انتہائی عابد و زاہد شخص تھا۔ اسے جب معلوم پڑا کہ حضرت مریم تو حاملہ ہیں، اسے انتہائی حیرت ہوئی۔ وہ جب بھی بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے کا ارادہ کرتا تو ان کی عبادت و تقوی اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو انہیں برا سمجھنا مشکل معلوم ہوتا۔ بالآخر ایک دن اس نے حضرت مریم سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیں گی تو میں کہہ دوں گا، اس طرح میرے دل کی پریشانی رفع ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا، اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر تخم کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم ہی کے پیدا کی اور اپنی قدرت سے بغیر بارش کے درخت اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل کی وجہ سے ضعیف ہو چکی تھیں، اسی لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیابت کا فریضہ انجام دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائے، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئی۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم آپ کی والدہ ماجدہ کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کی 3ری سورت سورہ آل عمران آپ کے نانا اور حضرت مریم کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورۃ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کی تھی۔ قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کے حالات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکمل حالات زندگی بیان کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے، جبکہ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ آپ نے قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل فرمائی، اور اس کے ٹھیک 3 سال بعد ہی آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 33 سال تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو والدہ نے آپ کو مدرسے بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ دیگر بچوں کے برعکس کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے اور لوگوں سے حکمت و دانائی کی باتیں بیان فرماتے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے کہنوں نے انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا ناظرین کے نام کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقائد و اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بیت المقدس کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس آئیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور 9 خاص معجزات سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔
फरमाए। कुरान करीम में रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के जिन मुअज्जिज़ात और फजीलतों का जिक्र फरमाया है वो मुख्तसरन ये है। पहला, हजरत ईसा इब्ने मरियम को वालिद के बगैर पैदा फरमाया। दूसरा, आगोश मदर में कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। तीसरा, परिंदे की शक्ल या मिट्टी का परिंदा बनाते उस पर फूंक फरमाते तो अल्लाह के हुक्म से उसमें जान पड़ जाती। चौथा, पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीनाई वापस आ जाती। पांचवा, बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहत याब फरमा देते। 6, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। 7वां, लोग जो कुछ घरों से खाकर आते या जो कुछ अपने घरों में जखीरा करते उसकी तफसील बता देते। 8, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की फांसी से महफूज फरमाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। और 9वां, कुर्बे कयामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में नुज़ूल होगा। नाज़रीन कराम, हवारी हूर से माखूज है जिसके लुग़वी मानी सफेदी के हैं। हजरत ईसा के चंद मुखलिस साथी सफेद पोशाक ज़ेब तन किया करते थे, इसलिए उन्हें हवारी का लक़ब दिया गया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से मुलक्कब किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ना तो कोई घर था और ना ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर करिया करिया दीन हक की तबलीग फरमाते और हस्बे जरूरत अपने मुअज्जिज़ात से बंदगाने खुदा की मदद फरमाते। लेकिन इस सब के बावजूद यहूदी सरदार और काहन उन्हें अपने खुद साख्ता और गुमराह कुन नजरियात का दुश्मन समझते हुए अजियत देते, तकजीब पहुंचाते और रंजो गम में मुब्तला करने से बाज न आते। नबुवत के मुनकरीन में गिनती के चंद अफराद ऐसे जरूर थे जो आपके पैरोकार हमदर्द और गमखार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि बनी इसराइल मुअज्जिज़ात के ज़हूर के बावजूद आपकी नबुवत के मुनकिर हैं और सख्ती से कुफर पर जमे हुए हैं, तो फिर आपने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। एक दिन हवारियों ने हज़रत ईसा से एक अजीब मुतालिबा कर दिया जिसे रब्बे जुल जलाल ने कुरान में यूं बयान फरमाया। हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ताम का खान नाजिल करे? हवारियों के मुतालिबे पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगारा, हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा कि वो दिन हमारे लिए ईद करार पाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो दस्तरखान तुम पर उतारूंगा, फिर इसके बाद जो कोई तुम में से नाशुक्री करेगा तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को न दी होगी। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मायदा आसमान से नाजिल हुआ था या नहीं, इस हवाले से मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है, जबकि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि मायदा आसमान से नाजिल हुआ, इसमें रोटी और गोश्त था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खयानत ना करना, न अगले दिन के लिए जखीरा करो, मगर उन्होंने खयानत भी की और जमा भी किया और अगले दिन के लिए उठा भी रखा तो उनके चेहरे मस करके बंदर और खंजीर जैसे बना दिए गए। नाज़रीन का नाम, यहूद के नागुफ्ता बे हालात की बदौलत इस जमाने में यहूदिया के बादशाह हेरोदोस की हुकूमत अपने बाप दादा के इलाके में बामुश्किल 1/4 हिस्से पर कायम थी और वो भी बराए नाम, जबकि असल हुकूमत और इक़्तिदार बुत परस्त शहंशाह कैसर रूम को हासिल था और उसके हुक्म पर यहूदिया के अक्सरियती इलाके का गवर्नर या बादशाह भी मुकर्रर किया जाता था। यहूद अगरचे बुत परस्त बादशाह के इक़्तिदार को अपनी बदबख्ती समझकर मुतनफ्फिर थे, लेकिन हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुलूब में हसद की आग ने सदियों की गुलामी से पैदाशुदा पस्त ज़हनियत के हामिल उन यहूद को अंधा कर दिया था। चुनांचे एक दिन उनके मरकजी नुमाइंदे जमा होकर बादशाह के दरबार में जा पहुँचे और अर्ज की, आलिजा, ये शख्स हम सब के लिए शदीद खतरा बनता जा रहा है। इस शख्स ने अजीबोगरीब शोबे दिखाकर खलकत को अपना गर्विदा और लोगों को बेदीन कर डाला है। अब ये अवाम की इस ताकत के बल पर कैसर रूम और आपको शिकस्त देकर बनी इसराइल का बादशाह बनना चाहता है। इस बढ़ते हुए फितने को फौरी तौर पर कुचल डालना बहुत जरूरी है। गर्ज काफी गुफ्तो शनीद के बाद बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी कि वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके शाही दरबार में पेश करें। बनी इसराइल के सरदार
फकिया और काहन इस फरमान से बहुत मसरूर हुए और फख्र व मुबाहत के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। आपस में तय पाया कि निहायत राजदारी के साथ इस खास मौके का इंतजार किया जाए कि जब खलवत व तन्हाई में उन्हें इस तरह गिरफ्तार किया जाए कि अवाम को खबर न होने पाए। एक तरफ यहूद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश में मसरूफ थे तो दूसरी जानिब रब करीम अपने महबूब बंदे के साथ था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वालों में से है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद की साजिशों का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने हवारियों को एक जगह जमा किया और उनसे फरमाया कि बनी इसराइल के सरदारों और काहिनों की मुअद्दाना सरगर्मियां तुमसे पोशीदा नहीं। अब वक्त की नजाकत और कड़ी आजमाइश और इम्तिहान की घड़ी तकाजा करती है कि तुम में से सवाल करूं कि तुम में वो अफराद कौन हैं जो इस कुफ्र इनकार के सैलाब के सामने सीना सुपर होकर खुदा के दीन के नासिर व मददगार बनेंगे। हजरत ईसा का ये इरशाद मुबारक सुनकर सब ने जोश व खरोश और सदाकत ईमानी के साथ जवाब दिया, हम अल्लाह की तरफदार और आपके मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हैं कि हम फरमाबरदार हैं। हजरत ईसा की निगरानी में मसरूफ बादशाह के मुखबिरों ने एक रोज सरदार और काहिनों को इत्तला दी कि इस वक्त यसू मसीह लोगों की भीड़ से अलग अपने शागिर्दों के साथ एक बंद मकान में मौजूद है। इत्तला मिलते ही वो लोग मौके पर पहुँच गए और चारों तरफ से मकान को घेर लिया गया। रिवायत में है कि मकान का मुहासरा करने वाले यहूदियों की तादाद 4000 थी, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? 12, 14 या फिर 17? वो कौन शख्स था जिसके चेहरे को आपकी शक्ल दी गई? इन सवालात के मुफस्सिरीन की कुतब में मुख्तलिफ जवाबात मौजूद हैं। हमने नाज़रीन कराम अल्लामा इब्ने कसीर की शोराए आफाक किताब क़ससुल अंबिया में दर्ज वाक़े का आपके लिए इंतखाब किया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाना चाहा तो आप अपने साथियों के साथ घर आए। आपके साथ 12 हवारी थे। आपने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसे मेरी शक्ल दे दी जाए और फिर वो मेरे बदले कत्ल कर दिया जाए तो वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। तो एक नौजवान शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की कि मैं हाजिर हूँ। आपने उसे बिठाया और फिर पूछा, लेकिन फिर वही शख्स खड़ा हुआ और अर्ज किया कि मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया कि हाँ, आप ही वो है। तो फिर उस नौजवान की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हो गई। आपने उसे अपना कुर्ता और अम्मामा अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घर के रोशनदान से आसमान पर उठा लिए गए। यहूद ने आपकी शबी यानी आपसे मुशाबा शख्स को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया जो 7 रोज तक सूली पर रहा। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे हजरत ईसा मसीह को अल्लाह के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है। हालांकि ना तो उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इंजील जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारका 30 साल थी, जिसके ठीक 3 साल बाद आपको आसमान पर उठाया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें रूह मा जिस्म उठाया। वो इस वक्त जिंदा है, कयामत से कबल दुनिया में वापस आएंगे और सब लोगों की तरह वफात पाएंगे। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक कैसा था, इस सिलसिले में चंद मुस्तनद हदीस मुबारका पेश खिदमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज में मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा था। दरमियाना कद, मयाना जिस्म, रंग सुर्खी माइल और सफेदी लिए हुए और सर के बाल सीधे थे। ऐसे तरोताजा और पाक और साफ के मालूम होता था कि अभी गुस्ल करके निकले हैं। नाज़रीन कराम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से करीब तर हूँ। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में से न हो ले। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूरों को कत्ल कर देंगे और जजिया कबूल नहीं करेंगे। उस दौर में मालो दौलत की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई उसे कबूल ना करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।